हमारे यहाँ बेटा
Hi guys, fantastic. Just so guys, we are doing fantastic in this Corona time with so many challenges which I faced in all other businesses. I don't want to put any business down. One of the only companies which is doing ethical and professional business is Forever Living. So you can understand how fantastic ये जो कंपनी है Forever, ये जो चमत्कार है. तो guys, आप देखो दूसरे कितने बिजनेस में कौन सा बिजनेस चल रहा है. बिजनेस जो चल रहा है वो है हॉस्पिटल्स. लेकिन उधर क्या होता है अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं है किसके कंपनी किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट, बट मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या झोल, चीटिंग, हेराफेरी जो होता है और किस तरीके से चीटिंग करके आपके लाइफ के करके फिर क्या बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये डायलॉग मारते हैं तो आपको लूटने के चक्कर में. सॉरी टू से आई बीन वेरी डायरेक्ट. सो गाइस, फॉरएवर इज समथिंग वेरी वेरी क्लासी, समथिंग 100% बेटर. और इसमें एवरीथिंग इज जेन्यून. हम लोग ने कोई रेट बढ़ाया नहीं है कि कोरोना में हम लोग ने कुछ बढ़ाया है. नथिंग. एवरीथिंग इज जेन्यून. द ओनली कंपनी टू पे दिवाली बोनस in 2020 is Forever Living Products only. Show me any other company. Show me Tata, Birla, Ambani. I'm not saying they're bad, but show me if they have paid Diwali bonus or chairman bonus to any other company has given. So I will not want to put them down, guys. मैं ये चाहता हूँ कि Forever जैसी कंपनी है ना, मैंने ज्वाइन किया था. I had joined this company in 2000, so I know exactly how fantastic. I've traveled the world with this company. Or I have achieved amazing. I don't want to say what all I've achieved. It's already there on YouTube and everything. So guys, nothing like it. But today I am not the speaker. We have a special speaker. So I'll want to introduce you to this fantastic guy. So I have got his report here on my phone. So I will just tell you right now. This guy is fantastic. And best part is this guy is always active. He always wants to do something. He always wants to be excited. He, in fact, when his seminar was there, he was more interested. He was calling me more than I was calling him. So you can understand how fantastic this guy is. And before I even tell you his name, okay, his name is Jayant Patel. Jayanti Patel. Now, Jayanti Patel, we don't call him Jayanti Patel. We call him Jayanti Bhai, because he's more like a brother to us. So he's outstanding, guys. Now this guy has achieved tremendous stuff with Forever. He is qualified for the Eagle Manager 7 times. कोई ना एक टाइम क्वालिफाई करते खुश होता है. This guy has qualified 7 times. Chairman bonus, he's qualified for Kaplan 2 times, and he's with the company for the last 12 years. And guess what? In this Corona time, जो अच्छी का कंपनी का हो गया, वो हम लोग का कंपनी अभी भी दे रही है. See, it's not important how much money you make, even if you're making 1 lakh rupees in this time without investment, office staff, electricity, light. If you're making over 1 lakh, it's mind blowing. So जयंती भाई, आपका वीडियो चालू करो और धमाल करो, क्योंकि ये जो जयंती भाई हमारे बहुत अच्छे भाई है. एंड हम लोग हर ट्रिप में जो अब्रॉड मिलते हैं, तो हमारा बेस्ट पार्ट फॉरएवर में क्या होता है? हैप्पीनेस. तो आप देख सकते हैं जयंती बहुत आपको घर तो एकदम जबरदस्त है. अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, मैं कोई होटल में नहीं रुकने वाला हूँ, आपके घर पे रुकूंगा. तो दिस इज आउटस्टैंडिंग. बहुत अच्छा लगा आपका. वेरी वेल डन. आई लाइक द लोगो ऑन द लेफ्ट साइड, विच फॉरएवर लोगो जो है जबरदस्त है. तो जयंती भाई, आज का पूरा जूम मीटिंग, आपका माइक चालू करो सर. आपका साउंड नहीं आ रहा है. यस सर. यस यस, थैंक यू सर. आई मीन ये जो टफ टाइम्स में, ये टफ टाइम में जो सब जो हमारा ये वन ऑफ द ओनली बिजनेस व्हिच इज गोइंग अप. सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग, आपके जितने भी वीडियोस चालू है, आपके वीडियोस बंद करो, सो दैट वी कैन कंसंट्रेट ऑन द स्पीकर. एंड आई वुड लाइक टू थैंक सम ऑफ आवर एफएलपी टीम. जो हम लोग का ये जो जूम का मीटिंग है, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल. वी आर 3 people in the team. One is Rajiv Mehta, so I would like to thank Rajiv Mehta also to be a part and full support of him. He's an outstanding guy. We have Santosh also, who's supporting us.
So we three have made a team and do this Zoom meeting. So guys, we were off some time, but don't worry, we are going to rock. And Jayanti bhai, first of all, thank you, Yes, sir. namaste. हमारा पूरा रिगार्ड्स आपके पूरे फैमिली को, एंड आपको यू आर रॉक स्टार. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं पूरा जूम का मीटिंग में आपको दे रहा हूँ कि यू टेक ओवर. एंड वी रियली सल्यूट यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क विद फॉरएवर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच सर, एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सभी का स्वागत है इस जूम के अंदर. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैं इस कंपनी में आया आज से 12 साल पहले, 19 फरवरी, मेरे को डेट के साथ में महीना भी याद है, 19 फरवरी 2009. तो एक इवेंट हुआ था हैदराबाद के अंदर 2010 के अंदर भी, 2010 में. वहां पे चेयरमैन बोनस तभी था, प्रॉफिट शेयर ऐसा बट रहा था, मतलब बहुत बड़े पैसे बटने वाले हैं ऐसा मैंने सुना. और वो देखने के लिए मैं गया था. मुझे ऐसे में मेरा ज्वाइनिंग हो गया था, मैं मैनेजर के लेवल पे था. बट मेरा जो सक्सेस का शुरुआत जो हुआ ना, वो हैदराबाद की वो रैली से हुआ. मैं देखने गया तो चलो मैगजीन चलाया था बाजू में फटाफट साइड में म्यूटेशन, तो वो मेरा नहीं वो सब ला. तो उसमें सबसे पहले अमन थी. तो मैंने वो जो रैली देखी थी उसमें मैंने एक चेक देखा, एक शख्सियत को बढ़ते हुए. वैसे दो शख्सियत में बटा था वो बड़ा चेक, बट वो चेक बटा 89 लाख. और मैं प्रूफ के साथ में, अभी मेरे पास अभी भी वो मैगजीन है. 89 लाख का वो चेक बटा. और जैसे ही वो चेक खुला तो मेरी आंखें ऐसी खुल गई कि मुझे भी ऐसा चेक एक बार लेना है, ऐसे स्टेज पे जाना है, मुझे ये करना है. और वो शख्सियत कौन थी आप जानते हो दोस्तों, जो 89 लाख लिए थे चेयरमैन बोनस. वो शख्सियत हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साइमन डेविडसन सर. उनके लिए मैं एक क्लेप करना चाहूंगा, क्योंकि वही चेक की वजह से मुझे एक मंजिल मिली कि ये कंपनी इतना सारा पैसा दे सकती है क्या. सिंगल चेक समझो 89 लाख रुपीस वो टाइम पे. आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कितना बड़े अमाउंट, ह्यूज अमाउंट. तो वो अमाउंट को देख के मैं चकराव हो गया. मैंने बोला ये कंपनी अच्छी है, मेरे को यहाँ पे काम करना चाहिए. तो मैं स्टार्ट किया था ज्यादा काम करने के लिए. बट मेरा शुरुआत के समय की मैं बात करूं, मेरा ज्वाइनिंग 19 फरवरी हुआ. और उसी टाइम पे ऐसे कोरोना जैसी, कोरोना नहीं था बट ऐसा ही रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी. मेरे पास 2 सीसी करने का पैसा उस वक्त भी नहीं था. आज जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उसी टाइम पे भी मेरे पास पैसा नहीं था. बट मैंने जो स्पॉन्सर हक मिलता है ना, उसका जुगाड़ किया. 2 सीसी कैसे किया पता है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, वो स्वेप करके मैंने 2 सीसी किया था. और 2 सीसी करने के बाद मुझे बिजनेस करना था, वो क्लियर फंडा था. अगर बिजनेस करना है तो चिल्लर पिल्लर, तो इतना 30,000 का जो अभी टर्नओवर है, उस टाइम पे 15,000 जैसा कुछ टर्नओवर था, 30% कुछ लेस, मतलब 2 सीसी था. सिस्टम वही था. तो उस टाइम पे मैंने टर्नओवर किया. क्यों किया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना था. ये मतलब मैंने ठाना था कि मुझे ये करना है. तो वो 2 सीसी किया. उसके बाद में ऐसा एक शख्सियत और मेरे लाइफ में आई, और उस शख्सियत को मैं हरदम जब भी मेरी कोई सक्सेस होती है या कोई भी जगह होती है, मैं उनको याद किए बिना नहीं रहता. उस शख्सियत मुझे मिली अहमदाबाद में, वो भी बंबई से बिलोंग करती है. और वो मुझे मिले पहली बार ही. उन्होंने मुझे बताया, वो बंबई से यहाँ पे आए थे और मुझे बताया कि भाई क्या बनना चाहता है. मैंने बोला मैनेजर. 2 सीसी हुआ था मेरा उस टाइम पे. और मैंने बोला मैनेजर,
जिसके पास 2 सीसी का पैसा नहीं था वो 120 सीसी का बात कर रहा था। जो नए लोग हैं उनको शायद पता नहीं रहेगा कि ये मैनेजर का जो लेवल है, हमारे में सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद तो ऐसा मैनेजर का लेवल 120 सीसी का टर्नओवर होता है। तो मेरा 2 सीसी हुआ था, मुझे पता नहीं था कुछ भी, बट एक पता था, मेरी सोच बहुत पॉजिटिव आज भी है। मैं कभी उन लोगों के बीच गया ही नहीं जो बोलता है मुझे चाहिए ही नहीं। मैं उन लोगों को, मैं दोबारा दोहराता हूं, उन लोगों के पास या उन लोगों के झमेले में कभी शामिल ही नहीं हुआ जो मुझे ऐसा बोले कि मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए था। तो मुझे चाहिए था। तो मैंने उस शख्सियत जब मुझे मिली, उन्होंने बोला 120 सीसी तेरे को करना है, उनका जितना जोश था ना वो मुझ में भर दिया। उस शख्सियत का नाम भी जोश मैथ्यूज था, और मेरे को एक विजन दिया 120 सीसी करने का। और उसी दिन मैंने एक वर्ड्स लिखा, विचार ही सर्जन है, जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। मैंने सोचा, जिसके पास 2 सीसी करने का पैसा नहीं था, आगे इसके बारे में बताऊंगा, कोई बोलेगा कि मैं सोचूंगा ऐसा हो जाएगा, तो होगा। मैं यही आज का मीटिंग का जो पर्पस है, आज का वेबिनार का जो मेरा जो पर्पस है ना, वो वही है। आप सोचोगे वैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पर पहले सोचना पड़ेगा। तो जो सर को मैंने बताया कि मुझे ये करना है, और उसी दिन ठाना, सर ने मुझे, वो तो चले गए यहाँ से बंबई फिर से, और उस दिन मैंने जो बात तय की थी 4 महीने में मैंने 120 सीसी पूरी कर दी थी। और मैंने यहाँ से फोन किया था कि सर मेरा 120 सीसी हो गया। बोले आगे क्या करना चाहता है? मैंने बोला मैं वो करना चाहता हूँ जो इस मार्केटिंग प्लान के अंदर जितनी भी इनकम है एक एक करके मैं सारी हासिल करूंगा आने वाले 2 या 3 साल के अंदर। 2 साल के अंदर बेस बना के, तो मैंने 2 साल के अंदर 9 टाइप की इनकम अचीव कर ली थी, और एक टाइप की इनकम मैंने तीसरे साल की, जो था चेयरमैन बोनस। मेरी इस तरीके से शुरुआत हुई थी। जो भी तकलीफें थी हेल्थ की वो खत्म हो गई थी, वेल्थ की भी खत्म हो गई थी। पहला चेक था 1700 रुपये का, दूसरा चेक मुझे याद है कुछ 2000 या फिर 3000, फिर चेक आया था 32,000। ऐसा करते 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 आज फॉरएवर में 12 साल हो गए हैं। 12 साल में, जैसे साइमन सर ने बताया, हमारे रोल मॉडल है, उनकी ये जो दिखता है आपको, शायद आपको दिखता रहेगा इस मैगजीन के अंदर, ये मैंने ये करके दिखाता हूँ आपको। ये पहला चेक था उनका, वो देख के ही मैंने किया था कि ऐसा चेयरमैन बोनस भी मैं लूंगा, और लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो भी शख्सियत, जो भी व्यक्ति है, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों ये करूं। अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आपकी जिंदगी के अंदर जो भी निर्माण करने जा रहे हैं उसमें बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ आप उसको पा सकोगे। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है मुझे ये क्यों करना है, कई लोग जुड़ जाते हैं, फॉरएवर में आ जाते हैं, पर कई लोग मैनेजर भी बन जाते हैं। मैनेजर बनने के बाद उसको पता नहीं चलता कि मेरे को क्या करना है, मैं क्यों इधर हूं। क्योंकि उसको जिंदगी का जो निर्माण करना होता है ना, एट प्रेजेंट जो हम हैं, उससे हमको फ्यूचर में जो जाना होता है ना, तो उसको तय करना होता है कि मैं ये क्यों करूं। तो ये जिंदगी का निर्माण जो होता है ना, 2 तरीके से होता है। एक होता है हमारे हालातों के साथ समझौता करके, और दूसरा होता है उसके साथ संघर्ष करके। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप हालातों के साथ संघर्ष करना चाहते हो या सरेंडर करना चाहते हो। एक बार जिंदगी में हालातों के साथ में सरेंडर कर दिया तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। चैलेंज तो सबके पास आएगी, आने ही वाली है। ऐसा ऐसा कोई भी शख्सियत नहीं है पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर, जिसको दर्द सहन नहीं करना पड़ा या उसको तकलीफ नहीं आई। ऐसा कोई शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि जिसको जो बोलता है कि मेरे लाइफ में कोई चैलेंज आती ही नहीं है। सबको आती है, बट सक्सेस वही पाता है जो हालातों के साथ संघर्ष करके उसके ऊपर विजय पाता है। उसको जो सरेंडर कर देता है ना, वो बंद पानी की तरह वहीं का वहीं ठहर जाता है। आपके ऊपर निर्भर है आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है या फिर जो है वही हालात में गुजर बसर करना है। दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने बोल दिया सरेंडर करके भाई अभी जो भी है, जो भी हालात है चलता है, अपनी गाड़ी चलती है, मतलब 2 वक्त की रोटी चल जाती है। तो ऐसी जिंदगी तो हजारों लोग जी रहे हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है। संघर्ष करते करते अगर आपने पॉजिटिव माइंड के साथ में आपने वो विजन देखा तो अपॉर्चुनिटी आपकी राह देख रही होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के अंदर तक होती है। जैसे चैलेंज है ना, वो एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जैसे ट्रेन में बैठे हम लोग, तो ट्रेन में बैठ के एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाते जाते बीच में आने वाला जो स्टेशन होता है ना, सक्सेस ऐसा एक पड़ाव है, और उधर जो तकलीफें हमको रहती है ना, वो संघर्ष है। अब हमको तय करना है ट्रेन में से उतर जाना है या हमारी मंजिल जो है वहां पे पहुंचना है। तो 2 चीजें आपको मिल सकती है, एक तो तंदुरुस्त जिंदगी मिलेगी, दूसरी एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, तंदुरुस्ती भी है और अच्छा लाइफस्टाइल जीने का एक जरिया भी है। मैं ये दावे के साथ में आपको कह सकता हूं कि आने वाले जो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी के मैं आज आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं कि आने वाले 100 साल के अंदर भी इसको कंपेयर कर सके ऐसी दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ये मेरा भरोसा, मेरा वादा है। इनका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, इसको कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसी ये अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में भी हर 15 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर जिंदगी लाइफस्टाइल की तरह जी सको ऐसा पैसा दे रही है। 42 ईयर का, 42 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। तो ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। जाते निर्णय बोलते हैं ना, हमें निर्णय लेना पड़ेगा, और ये निर्णय लेते टाइम पे नेगेटिव जो लोग है ना उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस बिजनेस को मैं जब सक्सेस की ओर ले चलता हूँ, सक्सेस की तरफ में चलता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये सब बातें कर रहे हैं, ये कोई लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं मिल सकता। सर, जब ट्रेन में बैठे होते हैं ना तो स्टेशन हर एक के बारी में से आता है। हो सकता है कोई भीड़ में बीच में खड़ा है तो उसको दिखता नहीं है, बस जो दरवाजे पे जाता है ना वो सबके लिए स्टेशन आता ही आता है। आपको उस भीड़ से अलग होना, उस भीड़ में से अलग होके देखना है, नेगेटिव व्यक्तियों से दूर होके देखना है, क्योंकि वो तो आने ही वाला है। कभी आपने सोचा है कि जो आप नेगेटिव व्यक्तियों के भीड़ में आप जब रहते हो और नेगेटिव व्यक्तियों के बीच में रह के आप पॉजिटिव बन सकते हो? आपको अगर सक्सेस पानी है तो आप उस भीड़ से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और आपको चैलेंज उठाने के लिए तैयार रहना है, साहसी बनना है, तो ही आप सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि जब तक हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो हमारा माइंड सेट भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि कभी भी आप ऐसा सोचो कि आपके जो ये माइंड है ना, उसमें जो नेगेटिव का बीज एक बार डाल दिया ना तो कभी आप उसके अंदर से पॉजिटिव की इच्छा नहीं रख सकते। क्योंकि एक बार भूसा अंदर भर गया ना, कुछ भी गलत भर गया ना, तो वो बाहर नहीं निकलने वाला और आपको कभी भी वो सक्सेस नहीं दिला सकता। क्योंकि चैलेंज जब तक हम नहीं उठाएंगे, चैलेंज उठाना नहीं सीखेंगे, तब तक भी हम सक्सेस को पार नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो पर्पस है, वो पर्पस हमारा
क्लियर होना चाहिए, क्या पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। उस वक्त जो पर्पस अगर क्लियर होगा तो ये सारी चीजें जो एक बार 1 बाय 1 जो मैं बता रहा हूं ना, वो सब क्लियर होती जाएगी। मुझे क्यों करना है फॉरएवर, क्यों करना है, मैं क्यों करूं फॉरएवर के लिए, मैं मतलब ये बिजनेस के अंदर मैं क्यों आऊं। बहुत सारा रीजन हो सकता है, कोई एक नहीं हो सकता। कोई बोलता है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, कोई बोलता है मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे जो मैं कमा रहा हूं उससे ज्यादा पैसा कमाना है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मेरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना, तो आपका परिवार का कोई पर्पस है, परिवार का कोई ड्रीम है ना, वो आपका पर्पस बना लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी जिंदगी का चैलेंज है वो आप खत्म कर सकते हैं, आपके पास अगर पर्पस नहीं है तो। पर पर्पस है, क्योंकि हम लोग उस मुश्किल दौर से ही गुजर रहे हैं, उसी के अंदर हमें करना है कर भला तो हो भला। क्योंकि दूसरे का भला करते करते ही हम हमारी अच्छाइयों को बाहर निकाल पाएंगे। हम हमारी बुराइयों से हम कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे जो जिसने नॉलेज दिया है उसको मैं सलाम इसलिए करता हूं, जोश मैथ्यूज सर को, क्योंकि उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई है, कर भला तो हो भला। अगर तेरे पास कुछ भी देने के लिए है, तेरी टीम को कुछ, किसी को भी, तो जो भी है वो कुछ भी दे दे, बिना सोचे दे दे, नीचे तक दे दे। बोले टीम को नीचे तक का सदस्य को तू हेल्प कर। अगर तूने बिना सोचे, मतलब कुछ भी अपेक्षा के बिना अगर काम कर दिया ना, तो उसका फल ऊपर वाला देगा। कभी भी आप सोचो कि जिंदगी में कोई फार्म होता है, उसके अंदर हम आम का जो गोटला होता है, आम का जो बीज होता है, वो बोते हैं तो क्या होता है, आम ही होता है ना। तो जो बोओगे वैसा ही आप पाओगे। तो उन्होंने बोला है कि अगर कर भला तो हो भला, वही रूट पे, वही जगह से मैं आज काम कर रहा हूं। और अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए उनको लक्ष्य बना के आपको आगे बढ़ना है। आपको राजा महाराजाओं की जिंदगी अगर जीना है, तो वर्ल्ड के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म है जिनका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है, जो ये जो अपॉर्चुनिटी है, वो आपको राजा महाराजाओं से कम जिंदगी नहीं देती है। क्योंकि वो जिंदगी यहाँ पे बैठे राजीव मेहता सर हो या साइमन सर हो, हमारे जोश सर, कोई कितने लोग हैं, संतोष जी हैं, वो सब लोग ये जिंदगी जी चुके हैं, ये लोग फॉरएवर से ले चुके हैं। मैं आगे आपको कई फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा मैं करीबन वर्ल्ड के कई सारी वर्ल्ड है, जो जिनके कंट्री है जिसके अंदर मैं घूम चुका हूं। राजा महाराजाओं की लाइफ अगर आपको जीना है, अगर कॉमन मैन से बाहर निकल के आपके परिवार को एक अच्छी लाइफ देना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज तक मैं थोड़ा थोड़ा करके, मेरा थोड़ा दाल रोटी चल जाता है, हर महीने जो भी पैसा आता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकम आज तक मैं ले चुका हूं, 2 गाड़ियां ले चुका हूं। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पे मैं घूम चुका हूं, अमेरिका के साथ में। नहीं तो गुजराती लोगों को अमेरिका में जाना है ना, तो वहां से रिजेक्ट कर दे कि भाई घर पे चले जाओ। मैं अमेरिका 2 बार घूम चुका हूं, वर्ल्ड की कई सारी कंट्री में घूम चुका हूं, और राजा महाराजाओं की तरह की जिंदगी और लाइफस्टाइल फॉरएवर से मैं जी चुका हूं। अगर आपका पर्पस क्लियर है कि मुझे कर्ज मुक्त जिंदगी जीना है, कोई भी पर्पस हो सकता है आपका, कोई भी लक्ष्य के साथ में कुछ भी हो सकता है। मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मेरे पर डेब्ट फ्री लाइफ चाहिए, मुझे बैंक का कर्जा भी नहीं चाहिए, किसी का भी कर्जा नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे याद है, माय डियर फ्रेंड, आज से कई साल पहले जब मैं फॉरएवर से जुड़ा था, उसी टाइम पे कर्ज लेने के लिए किसी के पास जब मैं बोलता था, मतलब तकलीफें थी, तकलीफ में आदमी किसी को भी बोल सकता है कि मेरे को 10,000 दे, 50,000 दे, 25,000 दे, कुछ भी कह सकता है ना। तो मैं जब उस टाइम पे उधर जाता था ना, तो लोग बोलते थे कि 1 घंटा लेट पड़े, खाली 1 कलाक मोड़ा पड़ा भाई। तो ये मैं जब सुनता था ना, तो मैं आज उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मुझे पैसा उधार नहीं दिया था। क्योंकि अगर उन्होंने उधार दे दिया होता तो मुझे फॉरएवर नहीं मिला होता। मुझे फॉरएवर में इसीलिए मिला
कि मुझे कुछ करना था, मैंने यही सोचा था कि आज के बाद मैं लाइफ में कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, इतना मेहनत करूंगा इस अपॉर्चुनिटी के अंदर से। ये सिस्टम ऐसी थी कि मुझे ये गोल्ड माइन दिखती थी, पूरा पूरा पता था कि अगर ये अभी मैं 50,000 रुपया जो देने जा रहा हूं ना, जिंदगी में इतना काम करूंगा कि 50,000 मेरा TDS कटना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था और वैसा हो रहा है और आगे भी होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है कि मुझे कैसे इसके अंदर से करना है। कर्ज मुक्त लाइफ अगर आपको जिंदगी के अंदर चाहिए तो यह अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। और VIP की तरह जिंदगी जीनी है। बराबर समझो, VIP कोई जन्म से पैदा नहीं होता, कॉमन पीपल के अंदर, सामान्य घर में कोई VIP पैदा नहीं होता। VIP जन्म से पैदा नहीं होता, VIP कर्म से पैदा होता है। कर्मों का तूफान ऐसा पैदा करो कि VIP लाइफ आप नहीं, आपका पूरा परिवार जिए और पूरा परिवार लाइफस्टाइल के साथ में जिए। और ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना कि जहां पे VIP लोग ही बनते हैं या VIP इधर ही आते हैं। VIP कर्म का तूफान पैदा करने से और सच्ची अपॉर्चुनिटी मिलने से बना जाता है। और वो VIP अगर आपको बनना है, अगर आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए, आप अगर सोचते हो कि आपका फोटोग्राफ से वो जो आपका भी फोटो चिपका रहे हो ना, वो पोस्टर बन के चिपके और लोग आपके पास ऑटोग्राफ लेने आ जाए, तो ऐसा एक ही वर्ल्ड के अंदर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। यहाँ पे आप VIP लाइफ की तरह जी सकते हो और ऐसी जिंदगी आप 100% जी सकते हो यहाँ के। क्योंकि एक बात आप समझ लो कि जो हम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे, वही काम करते रहेंगे और अपेक्षा रखेंगे 1 लाख रुपया कमाने की, 2 लाख रुपया कमाने की, तो कभी नहीं होने वाला। समय के साथ में बदलना होगा। समय के साथ में अगर हम नहीं बदले ना तो समय हमें बदल देगा। याद रखो माय डियर फ्रेंड, ये कोरोना कुछ करने वाला नहीं है, मतलब हमें पे हावी नहीं होने वाला, हम उसके ऊपर हावी होकर काम करेंगे। जो भी सिस्टम के साथ में बदलाव चाहिए। कोरोना आया तो जो भी सिस्टम, हमें भी पता नहीं था 1 महीने तक क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। कैसे काम करना है वो भी पता नहीं था। क्या जूम था वो पता नहीं था। घर के बैठे जूम रहे थे हम लोग, घर पे बैठे बैठे जूमते थे 1 महीने तक कि आगे क्या होगा। बट समय के साथ में जैसे ही बदलाव आया, इस सिस्टम को मैं सलाम करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को मैं सलाम करता हूँ कि सिस्टम के साथ में जैसे जैसे बदलाव आता गया, जैसे जैसे ट्रेनिंग आती गई, जैसे जैसे सीखते गए, सर 1 ही महीना हमने कठिनाइयों के साथ में निकाला है। इतने सालों के अंदर आज तक हमें पता नहीं है इस कोरोना की महामारी में ये क्या तकलीफें होती है, फाइनेंशियल तकलीफें क्या होती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आपको ढूंढना है। जो कोई भी महामारी आए, कोई भी चैलेंज आए, कोई भी तकलीफ आए, आपका घर रुकेगा नहीं, आपका व्यवहार रुकेगा नहीं, आपकी लाइफस्टाइल रुकेगी नहीं। ऊपर से आप किसी को हेल्प कर सकोगे कि भाई तेरे को कोई तकलीफ है, आजा मेरे साथ। तेरे को हेल्थ का तकलीफ है, आजा मेरे साथ। तेरे को वेल्थ का तकलीफ है, आजा मेरे साथ। मैं तेरी तकलीफ दूर कर सकता हूं, मैं तेरी तकलीफ दूर करने में हेल्प कर सकता हूं। और साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाएगा। याद रखो माय डियर फ्रेंड, अगर कर भला तो हो भला, ये आपके जहन में है ना, तो आप सही जगह पे हो। आप अगर सच्ची राह पे हो, आप अगर चाहते हो कि मैं अगर सच्चाई के साथ में खड़ा हूं, तो एक ही प्लेटफॉर्म है और सच्चाई की राह पे चलने वाला, उनका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप सच्ची जगह पे हो, आप सच्ची राह पे हो और यही चीज देता है। क्योंकि एथिकल ये वो बरकत का पेड़ है जिनको 40 साल से ज्यादा हो गए, 42 ईयर, 42 साल, जिसको कभी जंग नहीं लगा। क्योंकि उसको आपकी और हमारे मेरे जैसी कई लोगों की दुआइयों से उसका सिंचन हुआ है। इसीलिए फक्र के साथ में कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड, 150 के अधिक देश में हम काम कर रहे हैं। जिस देश में भी गए उस देश में कभी वापस लौट के नहीं आए। ये हमारी गुडविल है और ये सब कुछ दे सकता है। अब जिंदगी बदल सकते हो यहाँ से। किस तरह से हो सकता है? क्योंकि आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये लेना ही लेना है। मैं ये अपॉर्चुनिटी से लेके रहूंगा, मैं जिंदगी बदल के रहूंगा, मैं लोगों की भी जिंदगी बदल के रहूंगा। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, कर भला तो हो भला। ये सिस्टम ही ऐसा है। आपका स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। खाली डिसीजन नहीं लेना है आपको कि मुझे फॉरएवर करना है। कई लोग सक्सेस तो है ही,
फॉरएवर में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी अभी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर कुछ झांकने का जरूरत ही नहीं है। आपका आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब डिसीजन लेते हो, शादी करने का डिसीजन लेते हैं हम लोग, तब कैसे हमारा चेहरा बांध के ऐसा जाते हैं ना, दूल्हे का मंडप के तरफ ऐसा देखते हैं, एक ही लक्ष्य के तरफ हमारा नजर होता है कि मुझे क्या करना है। हमारा डिसीजन बदलता नहीं है। हमको क्लियर रहता है, क्लियर कट रहता है कि किधर जाना है, और वहां पहुंच के हम रहते हैं ना। वैसा ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ये इधर से 50,000 नहीं, 50,000 से शुरुआत करना है, तो मैनेजर अचीव कर लो, मैनेजर का लेवल अचीव कर लो, मैनेजर बन जाओ, टीम के साथ में मैनेजर बनो, एथिकल वे में मैनेजर बनो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सब दुखों की एक दवा वो लेवल है मैनेजर, जहां से आपकी वेल्थ की जो कहते हैं ना खाली खीसू, वो भरना शुरू हो जाएगा, वो तकलीफें सारी चली जाएगी। ये जो जितने नए लोग हैं आज, उनका मैं वेलकम करता हूं यहाँ पे, स्वागत करता हूं यहाँ पे, कि आप लोग सही जगह पे बैठे हो, सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठे हो, सही सीट पे बैठे हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो डिसीजन लिया है ना, वो जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और सच्चा डिसीजन लिया है आपने, कि आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह से आपकी जिंदगी में आज तक आपके लाइफ में से जो नहीं मिला वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि आगे मैंने बताया, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर हमें डिफरेंट चाहिए तो जो करते आए हैं हम लोग, उससे कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी हमको कुछ हटके मिलने वाला है। तो आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डिसीजन स्ट्रांग है ना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग, समझदारी चाहिए। क्या समझदारी चाहिए? आपको विश्वास होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है आपको समझदारी होते हैं। समझदारी किसके ऊपर होनी चाहिए? कि आपको जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है, आपका अपलाइन है, आपका नेबर हो सकता है, आपका संबंधी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका कजिन भाई ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको जिस अपॉर्चुनिटी बताई है ना, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ में समझदारी होनी चाहिए। समझदारी FLP के ऊपर होना चाहिए, फॉरएवर के ऊपर होना चाहिए। हमारी समझदारी सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि मैं 2 सीसी करूं, क्या करूं? मैं ये बोलता हूं कि अगर 2 सीसी करना है ना आपको, तो आपका शोकेस पहले ठीक कर लीजिए। अगर ये शोकेस ठीक हो गया ना, तो आप ब्रांड एम्बेसडर हो जाओगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के। आपका शोकेस अगर ठीक हो गया, आपकी स्किन चमकने लगी, आपके अंदर वो पावर आ गया, अंदर जब प्रोडक्ट जाएगा ना, तो पावर अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और यही पावर के साथ में आपका शोकेस अगर ठीक हो गया ना, तो अगर 2 सीसी करने का जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो 2000 सीसी एक साल में कर सकता है। ये पावर रखता है हमारा फॉरएवर का प्रोडक्ट, ये हमारा सिस्टम ये पावर रखता है। अगर ये आपने 2 सीसी का प्रोडक्ट खुद अगर इस्तेमाल कर दिया, थोड़े प्रोडक्ट को आपने सैंपलिंग कर दिया, लोगों को बता दिया, तो ये 100% दावे के साथ में मैं कह सकता हूं ये हो सकता है। आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ में बैठना है। कई लोग MBA बन जाते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये करना है, मतलब मुझे सब कुछ आता है। बोले जयंती भाई का ट्रेनिंग है, मुझे क्या सुनूं मैं, उसको क्या बताएंगे? सर रामायण समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, राम समझ में आ गया ना, तो वालिया लूटर में से वाल्मीकि बन सकते हैं। याद रखो माय डियर फ्रेंड, कभी MBA मत बनो, कभी ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपने ये सोच रख दी ना, उसी दिन आप ऐसा बता दो कि वापस आना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच ही आपका जीना है, या आपकी सोच ही आपकी सक्सेस है, आपका सोच ही आपका भविष्य है। आप कैसा सोच रहे हो? किसी को कम मत समझो, क्या पता कोई क्या सीखा जाए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग होती है माय डियर फ्रेंड, मैं पूरे हमारा जो लीडर लोग है उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। दिन रात लगे रहते हैं, संतोष जी या हमारे मेहता साहब है, साइमन सर, सबको मैं बोलना चाहूंगा, लगे रहते हैं आपके पीछे। क्या पता क्या जरूरत है उनको, क्या पता क्या जरूरत है उनको बैठ के इतना। हमारे जैसे लोग, हमारा पूरा जो ग्रुप है, उनको संपर्क करते हैं, सर आओ, आप आपका लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस बताओ, आप आपका टाइम यहाँ पे स्पेंड करो। वो इसीलिए ऐसा करते हैं कि हमारे लाइफ में जो हमको मिला है ना, फॉरएवर ने जो हमें दिया है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, वो दिल से कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। हमारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस दे रहा है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, क्योंकि फॉरएवर ने हमें वो दिया है
कि जो कर्ज चुकाने का हमारा वक्त है ना, वो यही वक्त है, ऐसा ही वक्त है कि हम बैठे बैठे यहाँ से हमारा एक्सपीरियंस लेके किसी की जिंदगी में चेंज ला सके। क्योंकि आप यहाँ पे एमबीए बन के मत बैठो, मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एमबीए हो ना तो कुछ और सीख लो, कहीं से भी दो वर्ड्स अगर आप में आ जाता है ना, वो 2 वर्ड्स आपको पता नहीं लाइफ में क्या सक्सेस पा सकते हो। तो पहले तो साइमन सर का जो है ना, एमबीए टिम्बीए बिम्बीए ये मत बन जाओ। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आप वो बन गए ना तो आप रुकावट के लिए खेद है। अब वहीं से आपकी सोच को, क्योंकि आपको कोई भी जो आपकी टीम के आजू बाजू में भी कोई सक्सेस पाता है तो उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि आप जैसा करोगे ना वैसा ही फल ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला वही देता है जो आप करते हो। आपने खुशियां बांटी है तो खुशियां ही लौट के आएगी। आपने दुख, आपने मतलब लोगों का भला किया है तो आपको भला ही लौट के आएगा। आप जैसा बोलोगे ना वैसा ही आपके पास लौट के आएगा। क्योंकि एक बात समझ लो, यहाँ की जो बैंक होती है, हम लोग वहां पे पैसे डालने जाते हैं ना, 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख डाल देते हैं और बोलते हैं कि 5 साल में डबल हो जाएगा। देती है ना यहाँ की बैंक। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर अच्छाई किया ना तो ये ऊपर वाले की बैंक है। एक बार किसी के लिए अच्छा कर दिया ना तो 1000 गुना वापस करके वो लौट के देती है। ये ऊपर वाले की बैंक है। इसीलिए जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत सोचो। किसी को भी अगर वो काम कर रहे तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो कि आपके पास है कुछ खजाना जो आप कुछ कर सकते हो, और जो भी उसके पास से अच्छाई है वो लेने की सोचो। तो जिंदगी में कर भला तो हो भला। मैं दोबारा बोलता हूं, किसी के लिए सोचना अगर है तो अच्छा ही सोचना, किसी को दर्द दुख नहीं, क्योंकि यही फॉरएवर है। यही रेक्स दादा का पावर है, ये रेक्स दादा का प्यार है। उनको मैं यहाँ से सलाम करता हूँ कि 42 साल के अंदर कई लोगों की जिंदगी यही सोच के ऊपर उन्होंने बदल दी है। फॉरएवर प्यार बांटता है, फॉरएवर लव बांटता है, इससे बेटर कंपनी, क्योंकि ये यही प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड, इंसान को एक अच्छा इंसान बना देती है। खाली पैसा नहीं मिलता इसलिए हमें प्यार है। रातों रात हमें करोड़पति नहीं बनना है, पर एक दिन करोड़पति बनना है, इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप रातों रात लखपति करोड़पति बनोगे ना तो जितने जल्दी जो पेड़ होता है ना, जितना जल्दी वो ग्रो होता है ना, उतना ही जल्दी टुंग हो जाता है ना। साइमन सर के जो वर्ड से टुन हो जाता है, वैसा ही मैं बोलता हूं, अगर ये पेड़, ये वो बरगद का पेड़, ये वो आम है कि अगर धीरे 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 ग्रोथ करके एक बार हो गया ना, पेड़ियों की पेड़ियों आम खाएगी, टोकरी भर भर के आम खाएगी। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसको सीखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग नीड के साथ में करना है। ये पर्पस के अंदर आता है कि आपका पर्पस क्या है। ये नीड जो है ना, नीड, आपका नीड क्या है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नीड है ना तो बहाने खत्म हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। कोई बोले ना कि फॉरएवर में अगर कोई सक्सेस नहीं हुआ तो उसके पास बहाने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके पास बहाने हैं। अगर बहाने नहीं है तो वो सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि ये वही खदान है, ये वो सोने की खदान है जिन्होंने जैसी उनके अंदर मेहनत किया ना वैसा ये खदान देती है। ऐसा नहीं है बहाने होने की वजह से ही आदमी सक्सेस नहीं होता, वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारता है। अगर उसके पास बहाने नहीं है, एक्सक्यूज जिसको बोलते हैं, अगर एक्सक्यूज यहाँ पे जो अगर खत्म हो गया ना तो जिंदगी की सारी चैलेंज भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये वही सिस्टम है, ये वही प्लेटफॉर्म है, ये वही जगह है जो एक को अगर दे सकती है तो 1000 को भी दे सकती है। जिस दिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को शुरुआत किया था, मुझे भी ये पता नहीं था कि मैं एक दिन के अंदर क्या इतना पैसा कमा पाऊंगा, महीने के अंदर इतना पैसा कमा पाऊंगा। पर एक शख्सियत ने मुझे विश्वास दिलाया था जिसका नाम है जोश मैथ्यूज सर। उनको मेरा अभी तो घर जैसा हो गया, मेरा घर जैसा, मतलब मेरी बेटी के शादी में वो बंबई से यहाँ पे आए थे, उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए थे। 2 दिन रुके थे मेरे घर पे। उन्होंने बताया था कि अगर इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपका जो जितना भी नीड है ना, आपका वो स्ट्रांग है ना, तो वो आपको दिला सकता है। ये भरोसा मुझे दिया था जोश सर ने। तो ये उसको मैं इसीलिए
दोबारा क्यों याद किया? क्योंकि वो इतने नजदीक है, क्योंकि जीरो से हीरो अगर मैं बना हूं ना, अगर इस अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो मैं आज कोई अंधी गली में मजदूरी कर रहा होता, कोई नाना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा होता, क्या पता मैं किस हाल में होता वो पता नहीं। बट इस अपॉर्चुनिटी के जरिए मेरी जो स्ट्रॉन्ग नीड थी ना, वो मेरा परिवार था और उसका हथियार बना लिया। मैंने यही सोचा था, जो मैंने तकलीफ झेली है ना, मेरा बच्चा नहीं झेलना चाहिए, इसलिए मुझे फॉरएवर करना है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे काम करना है। और वो मैंने करके दिखाया। मैंने पूरा, मैं पढ़ाई नहीं किया हूं, मैं टीमबीए बीमबीए कुछ नहीं किया हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं कॉमन पीपल हूं। बट मैंने जो हासिल नहीं किया ना, मेरे बच्चे ने हासिल किया। आज उसके लिए मुझे फॉरएवर पे फक्र है, उसीलिए मुझे फॉरएवर पे गर्व है। फॉरएवर ने जो दिया ना, मैंने वो कभी सोचा नहीं था। मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, बेटी भी इंजीनियर हो गई, वो क्या बोलते, वो स्ट्रक्चर इंटीरियर डिजाइनर बन गई। आज दोनों लोग हैप्पी हैं, दोनों लोग आज काम कर रहे हैं, फॉरएवर के साथ भी है, दोनों सुपरवाइजर है। और ये फॉरएवर का पावर है, जो मैं हासिल नहीं कर सका ना, तो फॉरएवर के जरिए मेरे बच्चे को मैं देने में कामयाब हो गया। इस घर में जो बैठा हूं ना, वो भी फॉरएवर का पावर है। मैंने अंडरस्टैंड किया था, मेरा पर्पस क्लियर था, मेरे पास विश्वास था, मेरी स्ट्रॉन्ग नीड के साथ में मैंने काम किया था। और दूसरी चीज थी, कमिटेड था। मैं आज भी कमिटेड हूं। किसी को मैं बोलता हूं ना, मैं आऊंगा मतलब आऊंगा। एक बार जबान दिया ना, तो मैं बोलता हूं, मैं नहीं, मेरा भूत आएगा, मगर आएगा सही, जयंती भाई आएगा सही, ये मेरा वादा रहता है। इस वादे के साथ में अगर आपने ये सारे गुण जो होते हैं ना, वो एक लीडर बनने की निशानी होती है। धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा नहीं होता लीडर रातों रात पैदा हो जाता है। बट अगर लीडर बनाने की कोई फैक्टरी है वर्ल्ड के अंदर, तो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये खाली आपको पैसा कमाने का जरिया नहीं सिखाएगी, यहाँ से एक लीडर क्वालिटी का पैदा होता है। और मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि फॉरएवर के अंदर जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी लीडर हैं, सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फॉरएवर को आज इसीलिए सलाम करता हूँ कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, एक मौका देती है, सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जीने का मौका देती है। सर हम राजा महाराजा जिस जगह पे जाते हैं, बंबई के अंदर होटल ताज आपने देखी है ना, वहां पे जाने का किसी का मन है चाय पीने का, तो भी वो अपने आप को ऐसा समझता है कि हाँ सर मैंने मतलब होटल ताज में चाय पिया, फॉरएवर ने पावर दिया, 4 दिन उधर रुक के आया होटल ताज में। लोग नीचे से फोटो खींचते, अंदर जाग के अंदर बैठ के। कुछ अभी 2-3-4-5 साल पहले मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं ना, उसी में मैं गया था। तो ये सारे पावर जो होते हैं ना, वो कमिटमेंट अगर आपका है कि मुझे मैनेजर रिट्रीट हासिल करनी है, मगर करनी है, कैसे होगा ये मत सोचो। कई लोग अभी सोचने लगेंगे कि यार जयंती भाई बता रहे हैं कि ये 720 मेरा भी नहीं था। फॉरएवर में पावर है, याद रखो। आप चलने का रुको मत, रुको मत। 2 लोगों ने ना क्या बता दी, ना क्या बोल दी, पूरा पोटला बिस्तर बंद करके फेंक देते हैं, बोले मैं नहीं कर पाऊंगा। 5 आदमी ने ना कर दिया। सर ये जो गेम है ना, वो 52 पत्तों की गेम है। जब कैच रमते हैं ना, पत्ता पत्ता पता है ना आपको, मैं वो तो 3 पत्ती बिन पत्ती याद नहीं, बट ये कैच है ना जो खेलते हैं ना कभी, ये 52 पत्तों का गेम है फॉरएवर के अंदर। आप अगर किसी को बोलते हो, अगर किसी को नो आता है ना, तो मैं इसके लिए बता रहा हूं, कोई नो बोलता है चिंता मत करो, वो दुग्गा तिग्गा पंजा छक्का गल्ला गद्दा जो भी आता है वही है। इक्का की तलाश करो, जब तक वो नहीं मिलता है ना, पत्ते खींचते रहो, पत्ते खींचते रहो, पत्ते खींचते रहो। क्या पता कोई नसीबदार के हाथ में पहला इक्का आ जाए, या क्या पता किसी के हाथ में 48 लोगों को ढूंढने के बाद आएगा, मतलब इक्का मिलेगा जरूर। आपको यही काम करना है। कई लोग बोलते हैं हमने 5 साल हो गए फॉरएवर में, अभी हमारा बिजनेस डाउन है, तो आज से फिर शुरू करो ना भाई। कौन ना बोलता है, आपको पावर का पता है, आपको पता है ये फॉरएवर दे सकती है, तो आज से क्यों शुरू नहीं कर सकते, फिर से क्यों शुरू नहीं कर सकते। एक बंदा आज मुझे मिला था, ऐसा सीनियर मैनेजर, बोले सर मेरा अभी बिजनेस, मेरे को पता नहीं ये ऑनलाइन कैसे, मतलब ये सोशल मीडिया क्या होता है, क्या होता है। मैंने बोला मुझे भी ये कौन सा भूत है वो नहीं पता था, पर मैं समय के साथ में बदला, समय के साथ में बदल के मैं देखा। आप हर रोज
ये फील करोगे ना, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग जैसे ही कुछ दो शब्द हमको आ गए ना, हम ऐसा अकड़ के बैठ जाते हैं। मैं मैनेजर बन गया, मैं लीडर बन गया, मैं ट्रेनर बन गया, मैं सब लोगों को सिखाता हूँ, ऐसे चलते हैं ना जैसे किसी को लात मार के घूसे में सब अकड़ के पार देने वाले, नीचे गिरा देने वाले। सर ऐसा अकड़ मत रखो, ऐसा सीखो, ऑलवेज विल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर सोच लिया ना, मैं गुजराती हूं, मैं बिजनेस के बारे में आपको बताता हूं, अगर धंधा अगर सिर पे नहीं चढ़ाया, ये जो लेवल वेवल है ना यहाँ पे नहीं चढ़ाया ना, तो दावे के साथ कह सकता हूं हर रोज शीशी क्या शीशा गिरेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप कभी भी हार नहीं मानोगे, आप कभी भी रुकोगे नहीं, हर हाल में आप सब अचीवमेंट लेके रहोगे, पर आपका कमिटमेंट होना चाहिए, उसके लिए आपको प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। कई लोगों को क्या है, करते तो बहुत कुछ है पर प्राइस पे नहीं कर रहे, उसको पता है मैं कमिटेड हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, पर वो जो पे करना होता, प्राइस पे का मतलब पैसा नहीं होता, प्राइस पे का मतलब होता है जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए वो करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप जिस बिजनेस आपको लाइफ पहले तो किसी को मतलब आपका आपका जो भेजा है ना, ये मगज है ना, वही खुलता नहीं है। क्यों खुलता नहीं है पता नहीं है मुझे, क्यों खुलता नहीं है। अगर पैसा चाहिए, करना है, ये जिंदगी का रोज रोज का टिक टिक। अरे मैं ये बोलता हूँ 15 जब उधार लेते हो, उधार तो उधार चुकाने के लिए उसको 10 बार समझाना पड़ता है कि भाई कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, झूठ बोलना पड़ता है। शर्म आती है मुझे भी जब झूठ बोलना पड़ता है, झूठ किसी को उधार। इससे अच्छा है दिन में 10 बार किसी और लोगों को फॉरएवर समझा दिया ना, तो ये उधार चुकाने वाले को कभी समझाना नहीं पड़ेगा। अगर 10 दिन में 10 लोगों को फॉरएवर बता दिया, तो ये उधार चुकाने वाले की जो उधारी है ना, ये खत्म करके रख देगी। ये अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में इतना ताकत रखता है। दिन में 10 लोगों को बात करना शुरू कर दिया, 10 लोगों को प्लान शो करना शुरू कर दिया, 10 लोगों को आपने प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब, आने वाले 3 महीने के अंदर अगर आपकी जिंदगी बदल के ना रख तो ये फॉरएवर का प्लेटफॉर्म नहीं सर, ये फॉरएवर का पावर नहीं सर, ये सिस्टम है सर। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो जिंदगी में आपने नहीं सोचा होगा वो आपको दे सकता है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर आपने प्राइस पे उसके अंदर कर ली, आपने प्रायोरिटी दे दी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना अच्छा जो जो ट्रेनिंग हो रहा है, तो भी हम लोगों को पता नहीं, हम लोग घर पे बैठे बैठे सीख लेंगे बोले। मुझे सब कुछ आता है, मैं सीख लूंगा, 2 ट्रेनिंग देखी थी मैंने, मुझे अब देखने की जरूरत नहीं है। बॉस बन जाते हैं, मैं ट्रेनिंग देख लूंगा, मैं कर लिया, मैं अब जाओ 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 जाओ। 1 साल हो गया, मैं तो फॉरएवर कर रहा था, मतलब मैनेजर बन गए, मैं अपने आप करूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप सब सीख लूंगा। तब अपने आप सीख लिया होता ना तो 365 दिन स्कूल नहीं जाना पड़ता, एक दिन पढ़ के आप एग्जाम दे देते सर। अगर एक दिन में एग्जाम दे के हम लोग 95% नहीं ला सकते, 95% लाना है तो प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरों से कुछ हटके हैं। अगर वही करोगे ना जो दूसरे लोग करते, तो भेड़ बकरियों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह वही जिंदगी जियोगे, कुछ अच्छा नहीं जी पाओगे। अगर अच्छा जीना है तो दूसरों से हटके कुछ करना पड़ेगा, तो ही आप जिंदगी में कुछ अच्छा लाइफस्टाइल जी सकोगे। ये ऐसे ही 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के फ्लैट नहीं बने, नहीं तो कई सारी धारावी की जैसी कई सारी 1 रूम रसोड़ा वाली दुकानें हैं। अगर आपको लगता है ना कुछ अच्छा करना, ये फ्लैट मेरे लिए बने हैं, तो आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। और आपको नो भी सुनना पड़ेगा। लिसन नो। कोई भी बोले भाई मेरे को नो, तो नो तो बोलेंगे ही ना। नो सुने बगैर कोई सक्सेस नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने नो नहीं सुनी ना, तो आप 50,000 क्या कुछ नहीं कमा पाओगे। आपने अगर नो नहीं सुनी है ना, तो आप 1,00,000 रुपया नहीं कमा पाओगे। आपने नो नहीं सुनी है ना, तो आप कार प्लान अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपने नो नहीं सुनी ना, तो आप चेयरमैन बोनस हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने नो नहीं सुनी ना, तो आप कभी ईगल मैनेजर नहीं बनोगे। नो का मतलब है आपकी जिंदगी अभी से शुरू हो रही है, और यही शुरुआत के अंदर आपके जैसे बंदे आपको मिलेंगे। दावे के साथ कहता हूं आपको मिलेंगे, पर सिंसियर हो जाओ माय डियर फ्रेंड, सिंसियर हो जाओ। ये ऐसे नहीं मिलता।
ये 12 साल का तजुर्बा है फॉरएवर को मुझे पूरा बदल दिया है। क्या करना था, कैसे बोलना था, कैसे चलना था, कैसा कपड़ा पहनना था, पता नहीं था। जीन्स के पैंट के ऊपर इन मार के टाई पहन के आता था मैं, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था, ऐसा मेरे को था, क्योंकि जहां से मैं आ रहा था वो आम आदमी की तरह जीने वाली जिंदगी थी। मुझे ऐसा था कि मिथुन मिथुन होता है, मिथुन दास जो पिक्चरों में आता था, वैसा लाइफस्टाइल होता है, ऐसा ही जिंदगी होता है। पता चला फॉरएवर में आपके लाइफस्टाइल क्या होती है, ये देगी आपको। सिंसियर बनना पड़ेगा, परिपक्वता तब आएगी। टाइम फ्रेम के बाहर नहीं मिलेगा आपको। लोगों को जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। कल मैं एक ट्रेनिंग देख रहा था, साइमन सर की एक ट्रेनिंग देख रहा था, ABC उन्होंने बताया था, ABC वाला एक ट्रेनिंग था, बहुत अच्छा ट्रेनिंग था। मैं साइमन सर का रात को भी देखता था। मैं हर रोज कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उससे सीखता हूँ। तो मैं देखता था ABC उन्होंने बताया, प्रोडक्ट, सिस्टम, कंपनी ये क्या देखती है, ये सब कुछ। जैसे तो ये आपको जैसे सिंसियर होगा ना, तभी आपको ये मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलने वाला, ऐसे ही ये कुछ आने वाला नहीं है आपके लाइफ में। और ये एक टाइम फ्रेम के अंदर ही मिलेगा। आप सोचते हो कि मैं आज आज साइन करता हूं और आज मुझे 1 लाख दे दे कोई, तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई बाबा महाराज की चादर नहीं है कि यहां से घुसे फॉर्म भर के उधर निकले तो 1 लाख रुपया हाथ में। ये ऐसा कोई जादू नहीं है। आपको वो करना पड़ेगा जो सक्सेस लोगों ने किया है। सक्सेस लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। सक्सेस लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया था। सक्सेस लोगों ने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग नीड और बिलीफ के साथ में काम किया था, कमिटमेंट के साथ में काम किया था, प्राइस पे की थी और उन्होंने भी नो सुनी थी। ये सबके बावजूद उनको टाइम लगा था। तो आपको भी वो टाइम फ्रेम के अंदर ही मिलेगा। आप मैनेजर बनोगे, आप सीनियर मैनेजर बनोगे, आप कार प्लान लोगे, सब कुछ मिलेगा। बस आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस जहाज के अंदर बैठा रहना पड़ेगा। इस ट्रेन के अंदर सीट लगा के आपको उधर झुका रहना पड़ेगा। 100% आप सक्सेस पाओगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में होगा हर हाल में, क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है ना आपके पास, तो मैं बोलता हूं बुरी से बुरी बला भी आपसे टल जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है। एक चीज मैं बताऊं, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो, आप ऊपर वाले में विश्वास करते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मानते हो कि भगवान है, तो इतना भी समझ लो, वो जो भी कुछ कर रहा है ना, वो आपके भले के लिए कर रहा है। अगर दर्द दिया है अभी, आपको तकलीफ है अगर अभी, तो आप समझ लो कि आपने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। उसने कुछ ऐसा सोच के रखा है जो अभी आपने नहीं सोचा है, वो आपको क्या देने वाला है। इसीलिए आपको लगता है मैं अभी तकलीफ में हूं और हम हार मान लेते हैं। हार मत मानो मेरे माय डियर फ्रेंड, हार कभी मत मानो। विचार ही सर्जन है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करो और पॉजिटिव लोगों के साथ में दोस्ती बनाए रखो। कभी आपने सोचा है कि मतलब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कभी आपने ऐसा देखा है कि जो मतलब ठोठ निशाड़िया बोलते गुजराती में, ठोठ निशाड़िया, जिसको कुछ आता नहीं है, उसके साथ में दोस्ती बनाई और आप डिस्टिंक्शन मतलब 95-99% लाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको ज्यादा मार्क लाना है, आपको सक्सेस लाना है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो सक्सेस लोग ने किया है, उनकी दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव लोगों के साथ में बैठ के उनका डुप्लीकेशन किया, तो वो तो गुजरने वाला है, वो तो मरने वाला है, साथ में आपको भी लेके डूबेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सक्सेस चाहिए, तो आपको पॉजिटिव जो 90% 95% ला रहे, 99% ला रहे, उनके साथ में आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं सर, उन्होंने अचीव किया है, कुछ तो ऐसा किया है कि उनके पास अचीवमेंट है, उनके पास ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट है। 89 लाख का चेक लिया है, कुछ तो है। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर रहोगे तो वही पॉजिटिव वेव्स आपके पास आएंगे और आपको वो मिलेगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा है। क्योंकि उसको 95% आ रहे हैं, आपको 60% भी आ गए तो कौन सी बुरी बात है। अगर मेरे
मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी जोश मैथ्यूज सर, उनका चेक मैंने देखा था 19 लाख 20 लाख ऐसा चेयरमैन बोनस का चेक मैंने देखा था। मैं ये सोचा था कि उनका डुप्लीकेशन करूंगा, अगर 10 लाख भी आ गया तो कौन सी बुरी बात है। सर खाली पैसा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए से जो ना खरीदा जाए, ऐसा मुझे प्यार मोहब्बत और कैसे ईमानदारी से जिंदगी जी सकते हैं ना, वो सिखाया है। आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं जहां पे भी है। माय डियर फ्रेंड, मैं उनको सलाम करता हूं जोश मैथ्यूज सर को, कि मेरी लाइफ का एक मेंटोर है। आप भी किसी को कोच बना लीजिए, आपकी जिंदगी में किसी को कोच बना लीजिए। अगर सक्सेस पानी है तो समय के साथ आप भी बदल जाओ, किसी को अच्छी तरह से कोच बना लो और धीरज के साथ में काम करो। पेशेंस रखना पड़ेगा, इंस्टेंट नहीं है मेरे दोस्त कहीं यहाँ पे। आप सोचो कि मेरे को 2 सीसी में कर लिया और मैं यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी में कुछ कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला माय डियर। समय के साथ में आप विश्वास रख के चलो। आपने फॉर्म अगर साइन नहीं किया आज, आप अगर नए हो और इस अपॉर्चुनिटी को सुन रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी अपलाइन जो बोले ना, उसके ऊपर भरोसा रख के जो बोले वैसा काम करो, क्योंकि वो कभी आपका गलत नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा कि अगर वो भगवान को प्रे करेगा, ऊपर वाले को प्रे करेगा, उनको 5 लाख मिले, क्योंकि उनको पता है कर भला तो हो भला। तो जो बोल रहा है 2 सीसी करने का बोल रहा है, तो उनको 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 फॉलो करो। अगर आप लीडर हो और आपने कुछ, जो कई लोग बोलते हैं जून पुरानी सक्सेस को लेके बैठते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया था, मैंने पर किया था तो किया था, अभी क्या। तो उन लोगों को भी मेरा ये मैसेज है कि आप अगर वो पाना चाहते हो ना, तो जो जिस वक्त में जो मेहनत किया था ना, वो मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए। आपने जो पाया था वो वक्त गुजर गया है, वक्त चला गया है। अगर वही पाना है तो उस टाइम पे जो किया था ना, वही प्यार आपकी टीम को दे दीजिए, आपकी टीम के लिए। और ये मैं तो यही बोलता हूं सर, बिजनेस गुजराती हूं मैं, अगर धंधे को आपको बढ़ाना है ना, तो 10% खर्च आपको करना पड़ेगा। आपको टीम को आपको कुछ देना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। आप जो भी आया, मतलब हमारा गुजराती में कहेवत है, दुगनो लगाता मारू मारू बाप नु तारू मारू सैयारू, आऊ अभी ऐसी कहेवत है। मतलब जो कुछ है वो मेरा, और बाकी का बचा वो अपना दोनों का। ऐसा नहीं होता, ये धंधा, ये बिजनेस है। और फॉरएवर है ना, वो प्यार ही प्यार है। माय डियर फ्रेंड, एक लक्ष्य के साथ में काम करो। मैं यही बोलूंगा आज कि अगर आप विरासत में भले कुछ लेके नहीं आए, विरासत छोड़ के जाएंगे, ऐसी ये अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी में आने के लिए आपको कोई नहीं पूछेगा कि कितना पढ़े लिखे हो, क्या काम किया है, कि क्या विरासत में है, आपके पास धन दौलत है लगाने के लिए, कुछ नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं रैक सर को सलाम करता हूं। कुछ नहीं पूछते वो यही पूछते हैं, क्या आपके पास हार्डवर्क करने की तैयारी है। वो यही पूछते हैं, सच्चाई के साथ काम करने की तैयारी है, क्या आप में वो पेशेंस है। जब तक वो आप नहीं पाओगे, तब तक इस अपॉर्चुनिटी को लगा रहोगे और जो करना है वो करते रहोगे। यस, अगर आपका जवाब हाँ है तो कम एंड जॉइन अस। फॉरएवर आपकी राह देख रही है। जो भी चैलेंज है वो खत्म कर देगी। कई लोग बोलते हैं मुझे ये क्या बोलना पड़ेगा, क्या बेचना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोगों को साइन करना पड़ेगा। तो मैं यही लोगों को बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, यही कि हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा धंधा ही नहीं है जो बोले बगैर आपको पैसा दे दे। और जो बोले बगैर आपको पैसा दे देंगे ना, वो आपको एक दिन जेल के सरिये के पीछे भी धकेल सकता है। मेहनत करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक ठेला लगाता है ना, कई लोग बोलते हैं सर मेरे को 2 चीज करना है, 30,000 रुपया का लगाना पड़ेगा। लगाना नहीं है, धंधा करना है भाई, टर्नओवर करना है, आपको वो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्योंकि 30,000 लेके वो ठेला लगाता है ना जो बंदा, वही 30,000 लगा के काम करता है, तो भी जिंदगी में पूरी लाइफ वो बोलता ही रहता है। सब्जी बेचने वाला, पानी पूरी, ढेल पूरी, ये सब करने वाला 50,000 लाख रुपया लगाता है, शाम को कितना कमा के आता है।
कितना कमा के आता है? 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया कमाता है। कितना? पूरा 50,000 लगाने के बाद। और पूरे दिन में 1000 बार बोलता है, 1000 बार ये केला वाला क्या बोलता है? ये केला ले लो, केला। हर हर गली मोहल्ले सोसाइटी में जाता है ना, हर गली मोहल्ले में जाके बोलता है केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, बोलता है ना 50,000 लगाने के बाद। सर घर में बैठे बैठे बोलना है। इस अपॉर्चुनिटी की ताकत तो देखो। अगर 30,000 रुपए का टर्नओवर कर दिया, घर में बैठे बैठे बोलना है, खाली इतना बोलना है, केला ले लो, नहीं एलो ले लो, एलो ले लो, एलो ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, इस अपॉर्चुनिटी को ले लो, इस अपॉर्चुनिटी को ले लो। अगर यही बोल दिया ना, जिंदगी आपकी बदल सकती है। यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये बोलना पड़ेगा। अगर ये बोला ना, तो जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, पेड़ियों के तक हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा कि मेरी जिंदगी चलानी है, ये त्योहार मनाना है, 1000 रुपया दे दे। बीवी को समझाते हैं घर में सुबह निकलते वक्त कि मैं बिल भर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अभी ये पगार आने दे, ये धंधे में पैसा नहीं मिल रहा है। अगर दूध वाले का पैसा है, बोलते हैं ना, सुबह में कितनी बार मनाते हैं। बच्ची आ जाती है, पापा फीस भरनी है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, मुझे ये करना है, मुझे मतलब नहीं नहीं, ये दिवाली आ रही है, मैं क्या करूंगी, मिठाई लानी है। हम समझा देते हैं, कभी ना पता नहीं रहता, काजू कतरी की जगह पे मोहनथाल खिला देते हैं, मना लेते हैं। मन अंदर तो रोता है, मन रोता है, हर रोज मनाते हैं, घर वाले को मनाते हैं। जिसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते ना, वो माँ बाप को मनाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को मनाते हैं। मैं कर लूंगा, मैं ये अगले महीने कर लूंगा, मैं ये महीने कर लूंगा। सर दावे के साथ कहता हूं, हर रोज 5 लोगों को बाहर मनाना शुरू कर दिया ना, उस दिन से घर वाले को मनाना नहीं पड़ेगा। उसकी जरूरियात नहीं, उसकी खुशियों के हिसाब से आप उसको बाजार से नहीं, उसको वो सारी खुशियां दोगे जो इस दुनिया के अंदर पड़ी है। उस दुनिया के अंदर जो चीज पड़ी है, वो सारी खुशियां उनको दे दोगे। अगर 5 बार उसको मनाते हो, शर्म नहीं आती उस टाइम पे आपको? क्या मेरे को ये बोलना पड़ता है कि आप मेरे माँ मैं अभी दवाई लेने में कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा? उसको समझाना है ना। दर्द होता है, अंदर दर्द होता है, वो दर्द अगर सहन नहीं करना, फॉरएवर बता दो, ऊपर वाला ही उसकी झोली में फॉरएवर डालता है। जिसने कुछ अच्छा कर्म किया होता है, उसके बगैर फॉरएवर नहीं आता, ऐसा समझ लो माय डियर फ्रेंड। अगर फॉरएवर झोली में जो आता है ना, अच्छे कर्मों की वजह से आता है। अच्छे इंसान आपकी लाइफ में अगर जो आता है ना, तो आपकी कर्मों की वजह से आते हैं। अगर आपके अच्छे दोस्त कोई है, आपको फॉरएवर दिखाते हैं, आपके कोच है, जैसे जोश सर है, ऐसे ही नहीं आते ऐसे लोग अपनी लाइफ में। सर मेरे को पता नहीं, 22वीं जनरेशन में बैठा हूं मैं। सर 22वीं जनरेशन, जहां से एक पैसा सूंघने को नहीं मिलता, उनको आज मैं इस माध्यम से कहता हूं, उनको उनकी सोच, उनका विचार मेरे अंदर ठूस ठूस के भर गया है। क्या बताऊं मैं, क्या मैं महसूस नहीं कर सकता उनके एक एक वर्ड्स को। उनके साथ में इतने दिन में रुका हूं, 4 दिन एक ही जगह पे एक थाली में हमने निवाला खाया। उनका प्यार मेरे अंदर भर गया। जो मैं आपको बताता हूं, अच्छे लोग आपको मिलेंगे ना, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये फॉरएवर का पावर है, खाली पैसा नहीं देती ये जिंदगी जीने का जरिया और सच्चाई की राह पे जीने का एक जरिया देती है। माय डियर फ्रेंड, एक ही चीज बोलनी है, घर वाले को नहीं मनाना है। केला लेके जो घूमता है ना, वो केला ले लो 500 रुपये में। क्या आपको 1,00,000 रुपया मिले, आप नहीं बोलोगे एलो ले लो, एलो ले लो? 1,00,000 रुपया क्या 5 लाख रुपया महीने का मिलेगा, आप नहीं बोलोगे फॉरएवर ले लो, फॉरएवर ले लो? बोलोगे ना माय डियर फ्रेंड? यस और नो? बोलोगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमें ठेला नहीं चलाना। इस वर्ल्ड का एक एमएनसी कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के हमको बिजनेस करना है, और ये बिजनेस हम करके रहेंगे, आगे बढ़ के रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं कुछ तस्वीर आपको पेश करना चाहूंगा, जो फॉरएवर के जरिए मैंने जो लाइफस्टाइल जी है, मैंने जो जिंदगी जी है, वो आपको मैं कुछ देना चाहूंगा। बाहर पीडीएफ पढ़ा है, उसके अंदर से मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा कि आप ये देख के आपके मन में भी कुछ हो जाए, कुछ होता है। हाँ माय डियर फ्रेंड, ये देखो,
हाँ, ये कितना बड़ा क्रूज है। 4 दिन रुके थे, वो भी मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया में नहीं। यहाँ की कंपनियां होती है, आपको बाहर ले जाएंगे, फॉरेन ले जाएंगे, विदेश। कहाँ पे? बोले बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया। उतने में ही पटाया, और आगे कुछ नहीं। फॉरएवर का पावर देखो। ये हम लोग बार्सिलोना में थे, हमें पता है कि हम लोग कहाँ पे थे। बार्सिलोना, मोंटे कार्लो। देखो ये कोई कॉमन जगह नहीं है कि जो बंदा बोलता है ना कि मैं यूएस से यहाँ पे आया था, बोले कैसे आया था, बोले जनरल में। ये जनरल नहीं है, ये क्या है? क्लास 1 अधिकारी जैसे बैठ के आते हैं ना राजा महाराजाओं की तरह, वैसे हम लोग आए थे बिजनेस क्लास में घूम के, मैं और मेंटर, मेरे गुरुजी। और ये देखो, ये मेरा पहला कार था, स्कूटर लेके घूमता था जब। पता नहीं था मेरी जिंदगी में गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, पर इतना जरूर पता था कि एक दिन कुछ तो ऐसा होगा। विचार ही सर्जन है, कुछ तो ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी बदलेगी। क्या पता किस धरती पे मैं जाके बैठूंगा, पता नहीं था मैं ऐसी धरती पे जाके रह सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। लुफ्तांसा एयरलाइन, ये मेरी दूसरी कार है। 2 बार कार प्लान अचीव किया। राजा महाराजा, ये दुबई की ऑफिस है। मैं और जो सर वहां पे गए थे, ये सेकंड कार प्लान की गाड़ी है। साइमन सर, बहुत मजा किया है मेरी टीम के साथ में, बहुत एंजॉय किया है हमने। ये मेरा एक मैनेजर है, यंगेस्ट मैनेजर, जो अभी अहमदाबाद से है, बहुत कुछ धमाके करने वाला है। उसके साथ में बहुत सारे हम घूमे थे। ये मेरा वाइफ के साथ में, ये ओरिजिनल वाइफ के साथ में घूमने का मौका कुछ और होता है, और ओरिजिनल के साथ में घूमना और मजा है। हम लोग घूमते रहते हैं। ये वो शख्सियत है जिनको खाली सुनते हैं, फोटोग्राफ्स में देखते हैं, और उसके साथ में भी फोटो पर। ये रोल्फ स्किप, अरे अपना निकोलस वर्किस, जो मुझे मौका मिला था, ये रॉक द बोट 2007 में ईगल मैनेजर बन के मैं गया था। ये वो जगह है जिनका हर लोगों को ड्रीम रहता है अमेरिका में अपना जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो ऑफिस में जाके हम लोग खड़े रहे। और ये मेरे मेंटोर के साथ में, या ऑफिस स्टाफ के साथ में, ये क्रूज की सफर है। देखो कितना मजा आता है। और ये वही चीज है जो ईगल बन के, ईगल की सोच रख के अगर हमने ये सोचा ना, कैसे हो जाएगा वो मत सोचना, हो जाएगा ये सोचो। ये ऑफिस है अपना, और इसके बाहर ईगल लिखा है। मैं ये ऑफिस मतलब बांद्रा के ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका, यूएस के अंदर एरिज़ोना की बात कर रहा हूँ। तो इसकी निकिता में सैल्यूट करता हूँ ऐसे मैनेजमेंट को। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में, और ये क्रूज के अंदर का सीन है। ये मास्क कैसे अभी हमने पहना, ये मास्क तो हमें, हमारा प्रोडक्ट कितना वो, मतलब वो उसको जो बोलते हैं ना हम लोग कि वो लेवल से बनाते हैं कि मास्क, और ये सब तो अभी आपने देखा होगा। ये हम लोग जब गए थे, ये हमारे सीईओ ग्रेग मोहन सर के साथ में ये तस्वीर है, जो सब है। ये मेरे ग्रुप के मैनेजर है, ग्रीस का फोटो है, हम लोग ग्रीस भी जाके आए थे। ये भी ईगल मैनेजर में बना था। ये ऐसी होटल थी जहां पे रहना एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। अब फिल्मी स्टार देखते हो ना, वो लोग यहाँ पे ठहरे, ऐसी जगह थी ये। तो वहां पे ये हमारे नए कंट्री मैनेजर हैं, मिस्टर हरीश सिंगला के साथ में, ये पूरे स्टाफ के साथ में हम लोग घूमते। ये पूरा मेरा ग्रुप है जो ईगल मैनेजर बना था। ये पावर होता है, ये खुशियां मिलती है कि आपने अकेले ने ये अचीव नहीं किया, आपके साथ में पूरी टीम है। मेरे कई मैनेजर अचीवमेंट लेके, ये सारी, ये ग्रैंड कैनियन दुनिया का 7वां अजूबा जिसको बोलते हैं, ये जगह है। वहां पे मुझे घूमने का मौका मिला था। ये सारे उनके साथ में, उनके दोस्त थे, वो हम लोग कई माइलों की 300-400 माइल मतलब आने जाने का सफर था। हम लोग एरिज़ोना के अंदर थे, फिनिक्स के अंदर, वहां से हमें ये मौका मिला था। और ये मेरे बेटी की शादी के अंदर जो मेरे मेंटोर है वो आए थे, उनको आशीर्वाद दिया था, और उनकी आशीर्वाद की फलश्रुति आज मेरा परिवार पूरे, ये दूसरे मेंटोर है मेरे, अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर ले। बहुत एंजॉय किया था। ये देखते हो पावर क्या होता है, ऐसे हरदम ऐसा पावर रहता है कि कुछ अचीव करना ही करना है। एक नशा हो जाता है, फॉरएवर एक नशा है, फॉरएवर पैसा बाय प्रोडक्ट है। फॉरएवर तो ऐसे ही, मतलब आपको देखना है कि आपको कैसी पाइपलाइन लगानी है। अगर एक बार ये पाइप लाइन लगा देनी, तो पैसा नहीं,
पैसों के साथ में खुशियों की बौछार आएगी। ये मुझे एक चेक मिला था, छोटा सा चेक, 4.5 लाख रुपए होता है इसका कीमत, 4.5 लाख रुपए का एक चेक मुझे मिला था। ये ग्रेट अपलाइन जिसको आप टाइगर बोलते हैं, वो टाइगर के साथ में हम लोगों ने ये चेक लिया था। ये दुबई के अंदर है। ऐसी कई सारी मतलब सक्सेस हैं जो ये एक फोटोग्राफ के जरिए आपका बिलीफ लेवल है वो मैं दिखाना चाहता था। तो ये जो चीज थी, हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज आए और अंत तक आप सब लोग बने रहें और मुझे सुना। सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज कुछ ना कुछ जो मुझे फॉरएवर ने दिया है उसके जरिए में अगर कुछ आपको दे सका, आपकी लाइफ में अगर कुछ बदलाव ला सका, तो मेरी जिंदगी का आज का ये दिन सुनहरा रहेगा। और इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए साइमन सर को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। साइमन सर को मैं मेंटर मानता हूँ। साइमन सर को अगर आपको इनके साथ में जुड़े रहे ना, तो मैं बोला ना 95% वाले लोग हैं। आपने जो नहीं कमाया ना, उनके साथ में अगर रह गए ना, तो जिंदगी में कुछ बहुत कुछ आएगा। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू साइमन सर। જયંતિ ભાઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ જ્વાળામુખી સાચે મજા આવી ગઈ, જોડી નાખ્યા બધાને, જગાડી દીધા। थैंक यू वेरी मच राजीव सर। थैंक यू साहब, તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો, थैंक यू सो मच। जयंती भाई, यस सर। सबसे बेस्ट लगा आप जब बोल रहे थे ना ओरिजिनल वाइफ, या तो मेरे को याद है कि हम लोग हर टाइम ट्रेनिंग में बोलते हैं, तो आपने जिस तरीके से बोला ओरिजिनल वाइफ के साथ क्या, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक not just you but Joes and the full team. They have been excellent and बहुत fantastic है। और आपने जो दिल से बात किया, क्योंकि क्या है कोई आके सेमिनार करता है लेकिन बोल बचन होता है, लेकिन आपने जो दिल से बात किया है फैंटास्टिक। गाइस आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो जयंती भाई ने बात किया है वो दिल से बात किया है, और ये शायद आपको 1 लाख रुपए के जाके ट्रेनिंग भी करेंगे, शायद इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिल सकता जो साहब ने आज आपको दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जिसने भी आपको ये सेमिनार में इंट्रोड्यूस किया है, जिसने भी आपको बुलाया, प्लीज गेट इन टच विद देम, दे आर योर स्पॉन्सर्स एंड प्लीज गेट इन टच विद देम सो दैट दे कैन हेल्प यू एंड दे कैन गाइड यू। आपको गाइड करेंगे, आपके सर्विस सेंटर रहेंगे। सो प्लीज गेट इन टच विद एवरीबॉडी। सर आपका टाइम परफेक्ट था सर, डोंट वरी। शायद आपका खाने का टाइम हुआ, आई एम नॉट देयर, पर अगर मैं उधर रहता आपके घर पे पहुंच जाता था, एंड आई एम श्योर राजीव आल्सो वुड हैव कम। बट इट वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, और कमेंट्स तो बहुत जबरदस्त आया। मैं आपको व्हाट्सएप करता पूरा कमेंट्स, तो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग थी आपकी। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट, मे यू सक्सीड एंड बिकम वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉट ओनली इन गुजरात बट ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका प्यार मोहब्बत आपसे सीखा हो, आपको थैंक यू जयदीप भाई, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।